Good morning, students. Today we will discuss about the remaining topics of lesson number 2 of your civics, that is the chapter Understanding Secularism. So in the last video we have discussed about the various objectives of Indian secularism. Now we will discuss about the various strategies followed by Indian government in order to promote successfully secularism in India. Okay, in order to promote the religious dominations, what strategies are followed by Indian constitution or Indian state, we will discuss. Major three strategies are there. The first one is strategy of distancing itself means state or country, we can say, distancing itself from the religion. Second strategy is strategy of non interference, and third strategy is the strategy of intervention. Okay, in detail we will study the three strategies, and this question is very important, or this topic is very important. Okay, because here we are talking about the strategies used by, or we can say the solution, how the country is preventing the various groups from the religious domination. Okay, how the secularism is actually working, this we are seeing in this topic. And the next thing we will discuss in this chapter is about how Indian secularism is different from the other democratic countries. Okay, these things we will see about the USA secularism and Indian secularism, and little more about the France secularism. So what is the difference between other countries secularism and Indian secularism, this we will see. Then we will conclude the chapter. Okay, so first of all, we are starting from the strategies adopted by Indian government to promote secularism or proper functioning of secularism. The first one is distancing itself from the religion. Now सबसे जो सही तरीका है, क्या करता है इंडियन स्टेट, ठीक है, हमारा कंट्री क्या करता है कि अपने आप को अलग कर लेता है, ठीक है, दूर कर लेता है किसी भी रिलीजन से. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन अटेंटिवली, जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में, पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं, वो किसी भी तरह के रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं. ठीक है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे ये शो हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. सो व्हाट वी कैन से इन दिस, कि क्या कर रहा है स्टेट अपने आप को या गवर्नमेंट अपने आप को दूर कर लेती है बिल्कुल रिलीजन से या रिलीजन रिलेटेड मैटर से. जैसे कि अगर एक और एग्जांपल मैं दूँ आपको, कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल्स को नहीं सेलिब्रेट किया जाता है. रैदर व्हाट दे यूज़ टू डू, दे प्रेफर हॉलीडे, कि सब अपने घर में अपने अकॉर्डिंग जैसे भी उनको जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करना है वो कर लें. ठीक है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, दे आर सेपरेटिंग देमसेल्व्स. ठीक है, यहाँ तक कि ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूल्स में एप्लीकेबल नहीं होता है. प्राइवेट स्कूल में वी गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल द रिलीजन्स एंड वी यूज टू सेलिब्रेट, बट इन गवर्नमेंट स्कूल्स सच काइंड ऑफ थिंग इज नॉट सीन. ओके, नेक्स्ट strategy we are talking about is the strategy of non interference. पहले थोड़ा सा आप हल्का सा वर्ड से समझिए. जैसे इसमें सेकंड स्ट्रेटजी में हम बोल रहे हैं स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. नॉन इंटरफेरेंस मतलब स्टेट जो है या जो कंट्री है वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करेगा ही नहीं. ठीक है, रिलीजन रिलेटेड मैटर्स में. और थर्ड जो स्ट्रेटजी है वो है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, मतलब कि वो इंटरफेयर कर सकता है. these two are opposite of each other, but how these kind of strategies work we will see with the example. Like first of all we are talking about strategy of intervention. It means that in order to respect the sentiments of all religions and religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities.
नाउ जैसे तो हमने लास्ट वाले स्ट्रेटजी में पढ़ा कि जो स्टेट है अपने आप को दूर कर लेता है रिलीजन रिलेटेड मैटर्स से, लेकिन इस सेकंड स्ट्रेटजी में हम बोल रहे हैं कि इंटरफेयर ही नहीं करता, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन पुट या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही नहीं है, इंटरफेयर करता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि हर रिलीजन के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, अपने धर्म को लेकर फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे अगर सिख की बात की जाए, ठीक है, दे यूज टू वेयर पगड़ी ऑन देयर हेड्स। ठीक है, तो अगर रूल्स में भी ये देखा जाता है, अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं तो वो विदाउट हेलमेट भी वो अलाउड है, उन पर फाइन इम्पोज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम उनको उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि आप पगड़ी हटाइए, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका रिलीजन से रिलेटेड सिंबल है, दे यूज़ टू फॉलो, ठीक है, उनको परमिटेड है, तो गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर सकती है हेलमेट पहनने के लिए, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट चार्ज फाइन फ्रॉम दोज पीपल। ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन हेयर, द गवर्नमेंट और द स्टेट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कोई इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको जिस तरीके से आपको वर्शिप करना है, आपका स्टाइल ऑफ वर्शिप है। ठीक है, आप टीका लगा के करिए, आपको टीका नहीं लगाना पसंद है आप मत करिए। ठीक है, तो आपको कोई किसी तरह का प्रेशर या फोर्स नहीं किया जाएगा। जिस आपको क्रॉस पहनना है, अगर आप क्रिश्चियन है तो पहनिए, नहीं पहनना है तो मत पहनिए। इन सच थिंग्स नो रेस्ट्रिक्शंस विल बी पुट बाय द Indian state or we can say by the country. Okay, you are free how you want to enjoy your religious practices and promote your religion. Third strategy, if we are talking about, is strategy of intervention. As I have discussed earlier also, this is the opposite of वॉट स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। वहाँ पर आपको बोला गया है कि आप रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसा हो कि वो किसी चीज़ में गलत ना हो, जैसे लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट ना हो उससे। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी करें। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ कर देते हैं और बोलते हैं मुझे तो ये रिलीजन के नाम पे करना था। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। ओके, सो इन दिस वी विल सी कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या कर सकता है, पूरा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि स्टेट आपको स्टॉप कर सकता है। ठीक है, या फिर इंटरफेयर कर सकता है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो आप रिलीजन। हाँ, हमने ठीक है आपको फ्रीडम दे रखी है रिलीजन के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी मिसयूज़ नहीं कर सकते हो आप फ्रीडम का। दिस वी विल स्टडी अबाउट फ्रॉम द टू एग्जाम्पल्स कि किस तरह से इंटरवेंशन किया जा सकता है। द फर्स्ट थिंग इज़, as we have studied about the untouchability. Okay, what was that? Among the people of same community, Hindu community, one section of the society is discriminating against the another section of the society, that was Dalits, but this was stopped. Why and how? By the Indian state, as it was creating discrimination among the various social groups, and that was not good. So here you have seen that strategy of intervention is applied. हमने स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन को अप्लाई किया, क्या करने के लिए, जो सोसाइटी में अनटचेबिलिटी चल रहा था उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया। ठीक है, उसको बैन किया गया। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, इंटरवेंशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। हम सपोर्ट कर देते हैं, जैसे क्या होता है कि कुछ रिलीजन होते हैं जो जिनकी संख्या कम है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स में है, तो कोई भी अगर अपने रिलीजन को सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग स्कूल खोलना चाहता है, कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन देना चाहते हैं, वी आर सपोर्टिंग इन सच कंडीशंस। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड freedom in such cases. We are also granting them financial helps on the basis of some facts. Okay, so these three strategies are followed by the Indian constitution, or we can say our India, in order to prevent the domination in our country. Okay, now next topic we will discuss
is or in what ways the Indian secularism is different from the secularism of other countries. Now listen, if we talk about the constitution of USA, okay, if we talk about the constitution of USA, we used to see that in the first amendment of US constitution, or amendment means the changes we used to make in our constitution, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या करना होता है, हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्ट्रिक्ट सेपरेशन हुआ बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट ऑफ अमेरिकन सेक्युलरिज्म, ठीक है। फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ अमेरिका में, उसके अकॉर्डिंग जो अमेरिकन सेक्युलरिज्म था, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि सेपरेशन होगा स्ट्रिक्टली किसके बीच में, रिलीजन और स्टेट के बीच में, यानी कि कंट्री बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्या करेगा, कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेगा, ना कि रिलीजन कंट्री के मैटर में और ना ही स्टेट जो है या फिर रिलीजन जो है कंट्री के मैटर में। मतलब कि मैं फिर से समझाती हूँ आपको, जैसे ना ही रिलीजन वहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक लगाएगा, कंट्री दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट का मतलब है नॉर द स्टेट विल इंटरफेयर इन religious matters and neither the religion will interfere in the state related matters. This is known as complete separation between the religion and the state of American constitution. ऐसा अमेरिका में है, हमारे इंडिया में नहीं है, because in India the state can intervene in religious affairs. अभी अभी हमने पढ़ा कि स्टेट क्या कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है, अगर कुछ भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्रैक्टिस होती है, नेगेटिव एक्शंस होते हैं, उनको रोक सकता है, इतनी पावर है। थर्ड स्ट्रेटजी जो है हमारे यहाँ अप्लाई होती है, जो कि ये चीज़ सेपरेट करती है इंडियन सेक्युलरिज्म को और अमेरिकन सेक्युलरिज्म को। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ सीधा बोला हुआ है कि स्टेट रिलेटेड मैटर्स में ना स्टेट और ना रिलीजन आपस में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं, स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है दोनों, ठीक है। यहाँ नहीं है, नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन इज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। कुछ भी नेगेटिव होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अनटचेबिलिटी को हमने रिमूव किया है, या फिर अगर कोई कहता है ह्यूमन बींग्स की डेथ कर देता है, बलि दे देता है और कहता है मैं तो ये रिलीजन के नाम पे कर रहा हूँ, तो सच थिंग्स आर नॉट अलाउड, एक्शंस आर टेकन रिगार्डिंग सच प्रैक्टिसेस, ओके। अगर हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस में इन फेब 2004 फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फॉर वेयरिंग एनी कॉन्स्पिक्यूअस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल। फ्रांस में भी क्या हो गया, रिलीजन से रिलेटेड, जैसे कुछ अगर मुस्लिम्स की बात करें या दूसरे रिलीजन्स में, दे यूज टू वेयर स्कार्फ्स एंड ऑल्स, ओके, सो दे यूज टू हैव some symbol of their religion. Such kind of things were removed or restricted in France, okay, but such kind of interference is not in our Indian secularism. So these are the various examples which shows that how Indian secularism is different from the secularism of other countries. We have studied two examples, the example of USA and the France. So what we are concluding in this is that Indian state is a secular state and works in various ways to prevent religious dominations. Now, next things we can conclude that Indian constitution guarantees fundamental rights which are based on secular principles. Okay, so these are the things you have to remember, and any interference in religion by the state has to be based on ideals laid out in the constitution. कुछ भी अगर हमें intervention करना है किसी भी तरीके से, तो उसका कोई basis होगा, ठीक है। So hope you have understood the lesson, okay, and in the next class we will do some exercise question answers of this lesson, okay. Revise the lesson well. Thank you.